Hello everyone, this is Ashish Jain and this is a continuation video of ongoing chapter Input Tax Credit. Now in the last video we have discussed apportionment of credit. Apportionment of credit basically means where there is a mixture of exempted supply, taxable supply as well as business or for personal purpose. But apportionment of credit applies only on input goods. What does that mean? Means apportionment of credit doesn't apply on capital goods. Now today we will discuss about how to apportionment credit on capital goods. And now this is a very difficult concept. So let's discuss. First of all, we need to study about meaning of input and input services. Meaning of input and input services. What is that meaning? If input tax includes all taxes such as tax on input goods, services and capital goods. Let's understand this concept through an example. Now section 17 explains when there is a mixture of goods and services goods as well as services, and there are basically two types of goods: input and capital. Input may be raw material and capital may be plant and machinery. And services, like suppose for example, let's take an example, engineering. So these are all inward supply. Means when there is a mixture of inward supply में क्या क्या मिक्सचर होगा? इनपुट गुड्स हो गए जो कि कुछ भी हो सकते सच एज रॉ मटेरियल, कैपिटल में गुड्स हो सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी, सर्विसेज भी इंक्लूड हो सकती है सच एज इंजीनियरिंग. ये सब इनपुट सप्लाई जिन पे आपने जो है आईटीसी सॉरी जिस पे आपने जीएसटी पे किया होगा. नाउ अब आपने इन सबको जो है आउटपुट कर दिया, मीन्स सेल ऑफ किया. तब आप उस पर जीएसटी कलेक्ट करोगे, वो क्या बन जाएगा? आउटपुट टैक्स. और ये क्या बन जाएगा आपका? इनपुट टैक्स. मीन्स जब इनपुट टैक्स में आपका इनपुट रॉ मटेरियल का भी टैक्स इंक्लूड है, कैपिटल गुड्स का भी आपका इनपुट टैक्स इंक्लूड है, प्लस सर्विसेज का भी आपका इनपुट टैक्स इंक्लूड है, एंड आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ जीएसटी गिवन है आपको, तब आप इसकी बाइफिकेशन कैसे करोगे, तब इसकी अपॉर्चमेंट कैसे करेंगे, ये आपको देखना है. दिस मेथड बेसिकली कॉल्ड कॉमन क्रेडिट्स. This method, basically called common credits.
common credits. Common credits क्या होता है basically? When it is difficult to identify the input goods or services are not exclusively used for said purposes or commonly used for exempted non-taxable and non-business purpose. That is called common credits. Now let's understand this concept through a chart कि कैसे हम common credits निकालते हैं और इसकी what will be the eligible credit for input tax. Now see T, ये क्या है बेसिकली आपका टोटल क्रेडिट ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज. ये क्या है टोटल क्रेडिट ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज. This is a T1, T2, T3 and T4. T3 basically is non-business, T2 exempt supply, T3 block credits, T4 remaining credits. देखिए नॉन बिजनेस में तो आपको आईटीसी कभी नहीं मिलेगा, एग्जाम सप्लाई में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ब्लॉक क्रेडिट्स में भी आपको आईटीसी नहीं मिलता. ब्लॉक क्रेडिट से आपको कंसेप्ट समझाएंगे कि आपको थोड़े दिन समझाएंगे ब्लॉक क्रेडिट्स क्या होते हैं. बेसिकली ब्लॉक क्रेडिट्स क्या होते हैं मीन्स इवन दो द गुड्स आर यूज फॉर फर्दर बिजनेस फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बट एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको आईटीसी नहीं मिलता. दैट इज कॉल्ड ब्लॉक क्रेडिट्स, यानी कि वो क्रेडिट जो आपके ब्लॉक कर दिए. सो इन दीज 3 केसेस आईटीसी जो आपको नहीं मिलता. नाउ लेट्स से total amount of T, that is total credit of input service, that is 10 lakh. Non-business items are for 1 lakh, external supply again 1 lakh, block credits 50,000. So remaining credits will be C1, sorry, this will be C1. So C1 equal to
t minus t1 plus t2 plus t3, which means 10 lakh minus 1 lakh minus 1 lakh, sorry, plus 1 lakh plus 50,000. Now that will come 7,50,000. So this will be C1, that is remaining credits. Now again this part we will divide into two parts, T4 and C2. T4 is basically taxable goods and zero rated sales. जीरो रेटेड सेशंस जीएसटी है बट उस पर जीएसटी कितना रेट है, जीरो है. C2 क्या होगा, कॉमन क्रेडिट्स. तो देखिए इस पे तो आईटीसी मिल जाएगा. अब मान लीजिए इसका जो अमाउंट है सपोज 2,50,000 है, तो इस पे तो जीएसटी सॉरी आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा. सो कॉमन क्रेडिट्स कितने रह जाएंगे अब, सो कॉमन क्रेडिट्स विल बी C2 minus C2 equal to C1 minus T4. So that will be 7,50,000 minus 2,50,000. That will become 5 lakh. Now again this C2 will be divided into three parts. D1, D2 and C3. So D1 will be credit proportionate to exempt supply, and D2 is again non-business. So C3 will be remaining credits. अब देखिए D1 की कैलकुलेशन कैसे होगी, D1 इक्वल टू E डिवाइडेड बाय टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय C2. जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल लेते थे कि अपॉर्चुनिटी ऑफ इंपोर्ट गुड्स कैसे करते थे, टोटल हम देखते थे कि हमें कितना क्रेडिट लेना है, इसको डिवाइड करते थे टर्नओवर से एंड मल्टीप्लाइड बाय एग्जाम सप्लाई. वो अमाउंट फिर हम उसको रिवर्स कर देते थे. वही एक एग्जाम्पल लिया इसमें. D2 कैसे निकलेगा, देखिए मान लीजिए मान लीजिए D1 एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं. D1 मान लीजिए एग्जाम सप्लाई है सपोज 200 लाख, टर्नओवर है 500 लाख एंड C2 कितना है 5 लाख. So that means 2 lakh will be reversed. Okay. D2 कैसे निकलता है, D2 equal to C2 multiplied by 5%. How much amount of C2 is 5 lakh? So that means 5% of 5 lakh. That means 25,000. Now that will remain will become remaining credits. That means C2 minus D1 minus D2, that will become C3. So that is C3 equal to 5 lakh minus 2 lakh
minus 25,000. Now that will become 2,75,000. तो दैट मीन्स अब हमें जो है इसकी एक तो कॉमन क्रेडिट्स मिलेगी, आईटीसी मिलेगा प्लस ये वाला. सो दैट मीन्स टोटल एलिजिबल आईटीसी विल बी टोटल credits available will be 2,75,000 plus 2,50,000, that is 5,25,000. Now this is a eligible credit. So this is the all concept about common credits. Now let's do another concept, which is section 17(5), which tells about block credits. देखिए ब्लॉक क्रेडिट्स क्या होता है बेसिकली. दिस सेक्शन explains no ITC will be allowed even though goods or services are used for the furtherance of business. दैट मीन्स गवर्नमेंट ने वो क्रेडिट्स जो आईटीसी है वो ब्लॉक कर दीजिए. कौन कौन से है वो? फर्स्ट वन इज मोटर व्हीकल कन्वेंस. यानी कि इस केसेस में आपको जो है आईटीसी नहीं मिलेगा. अगर आपने कोई मोटर व्हीकल खरीदी है तो उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. Except means there are some cases where ITC will be allowed in motor vehicle conveyance. That means वो डिपेंड करते हैं कि आप मोटर व्हीकल को आप किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो. गवर्नमेंट ने कुछ लिस्ट प्रोवाइड किया, अगर आप उन केसेस में आते हो तो आप आईटीसी ले सकते, अदरवाइज नहीं ले सकते. वो लिस्ट क्या क्या है? फर्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. Second, for making taxable supplies. Third, for supply of vehicles. Fourth, transportation of passengers. Fourth, imparting
training on driving, flying, navigating, of such vehicles. दैट मीन्स इन केसेस में आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, विच मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं आप उसमें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स या इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग, फ्लाइंग, नेविगेटिंग ऑफ सच व्हीकल्स। देखिए इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ड्राइविंग किसका मतलब क्या है, मान लीजिए अगर आप कोई एक छोटा सा स्कूल खोल लेते हैं, किसके लिए, अगर आप कोई गाड़ी परचेज की, अगर आप उसको लोगों को ड्राइविंग करने सिखा रहे हैं तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। ऐसा ही यहाँ पर अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स अगर आप इसके लिए यूज़ कर रहे हो स्पेसिफिक इसके लिए, तो आप उसका आईटीसी ले सकते हो। दैट मीन्स इन दीज केसेस आईटीसी विल बी अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट food, beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic, and plastic surgery. That means you are not eligible to get ITC on these following cases: food, beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery. That means आप कहीं रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाने गए, उसका जो खर्चा किया उस पर आपने जो जीएसटी किया उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्यूटी ट्रीटमेंट में नहीं मिलेगा। बट अगेन देयर आर सम एक्सेप्शंस। क्या क्या एक्सेप्शंस हो? Inward supply for making outward taxable supply of same category it may be either mixed or composite supply। अगर आप मान लीजिए फूड बेवरेजेस रेस्टोरेंट हैं, जो रेस्टोरेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने जो अगर वो ही सर्विस उन्होंने किसी और से लिए और फिर वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई जो है सेम कैटेगरी में होना चाहिए, तभी आपको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। दैट मीन्स अंडर दिस केसेस आईटीसी विल बी अवेलेबल। थर्ड पॉइंट, membership of club, health and fitness center,
मान लीजिए इफ एनी कंपनी गिव बेनिफिट टू इट्स एम्प्लॉयज of these services, then ITC will not be allowed. Fourth, rent a cab, life insurance, and health insurance. Which means again, if any company or firm providing these kind of services, rent a cab, life insurance, and health insurance, then ITC will not be allowed. But there are some exceptions, except means if government had made obligatory for an employer to provide any of these services to its employees. That means अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी एक कंपनी को या काफ़ी सारे कंपनी को अगर ये ऑब्लिगेशन डाल दिया, दैट मीन्स इट इज़ कंपलसरी टू टू गिव दिस काइंड ऑफ सर्विसेज टू ऑल द एम्प्लॉयज़, तो अब वो इसका आईटीसी ले सकते हैं। इसमें एक और केस में जो आईटीसी मिल सकता है, क्या केस है वो? दैट मीन्स व्हेन देयर इज इनवर्ड सप्लाई and outward supply will be of same nature. इसका एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए कोई एक मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है, कोई भी एक एक्स कंपनी है, उसने काफ़ी सारे अपने क्लाइंट्स को जो है लाइफ इंश्योरेंस दे दिया, बट मान लीजिए किसी एक साल या फिर दो साल कई बार जो रिस्क जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि इन सबको एक साथ पेमेंट कैसे करें। So to reduce that risk, company take re insurance from another company. अपना रिस्क कम करने के लिए वो उसी रिस्क को वो री इंश्योर करा देती है दूसरी कंपनी से लेके, तो उसका खर्चा हो जाता है। जो उस खर्चे पे जो उसने उस कंपनी को एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को जो रजिस्ट्री पे क्या होगा, दैट मीन्स किस पे क्या होगा, इंश्योरेंस पे क्या होगा, ठीक है। सो दैट विल बिकम इनपुट टैक्स एंड इंश्योरेंस जो उसने आपको दिया या किसी क्लाइंट को दिया, तो वो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड सप्लाई। दैट मीन्स वो सेम नेचर का है, ये सेम नेचर का है, तो उसमें भी जो वो है आईटीसी ले सकते हैं। दैट मीन्स इन दिस केसेस अगेन आईटीसी विल बी अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेवल बेनिफिट्स to employees on vacation such as LTC, तो इस पे भी जो आईटीसी नहीं मिलेगा। 6 पॉइंट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी।
आइए पहले तो मुझे सोचना है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर देयर इज अ मिक्सचर ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज लेबर। मान लीजिए अगर आपने किसी को अपनी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी एक पर्सन को, एक्स पर्सन को, उसने बोला कि आप जो है ये मान लीजिए कोई एक वॉल है, एक वॉल कंस्ट्रक्ट करानी है, एक वॉल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो उसमें मान लीजिए टोटल खर्चा बताया सपोज 5 लाख। तो 5 लाख में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपने पूछा क्या इसमें लेबर भी इंक्लूड है, बोला हाँ। क्या उसमें सारा रॉ मटेरियल इंक्लूड है, हाँ जी हाँ। और रॉ मटेरियल में क्या इंक्लूड हो सकता है, सपोज कुछ भी हो सकता है, लाइक सैंड होगी, सीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, रॉ मटेरियल में इंक्लूड हो गया, प्लस अपने लेबर भी लेके आ रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट। सो उस केस में जो है आईटीसी नहीं मिलेगा, बट अगेन देयर इज सम एक्सेप्शंस एक्सेप्ट। इसलिए देयर आर 2 केसेस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बदले वर्क कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज प्लांट एंड मशीनरी। इन केसेस में जो आपको आईटीसी अवेलेबल होगा। मतलब समझते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बदले वर्क कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स एग्जाम्पल लेते हैं। इस पॉइंट को समझा रहा हूँ अभी। मान लीजिए आपने जो है एक्स पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया, ठीक है, सपोज 5 लाख का, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मान लीजिए उसमें जो टोटल जो है मान लीजिए 20 वर्कर लेबर जो लग रहे थे, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांस जो सारे 20 लेबर जो नहीं आ पा रहे, 20 में से सिर्फ 10 ही आ रहे हैं। तो एक्स क्या कर रहा है, उस काम को पूरा कंप्लीट करने के लिए ऑन टाइम पे किसी वाई पर्सन को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता है कि आप हमें जो है 10 लेबर दो और उसी सेम प्रोपोर्शन में आप मटेरियल भी दे दो। तो उस केस में जो है एक्स को जो है आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी मिलेगा, मान लीजिए अब जेड पर्सन हो, आपने इसको हायर करा और एक्स ने वाई को हायर करा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर जेड एक्स की बात हो रही है, एक्स को मिलेगा। दैट मीन्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बदले वर्क कॉन्ट्रैक्ट काम हो रहा है, सेम नेचर होना चाहिए। ओके। और सेकंड पॉइंट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर प्लांट एंड मशीनरी तो आपको पूरा आईटीसी मिलेगा। 7 पॉइंट, inward supplies used by taxable person for construction of immovable property other than plant and machinery. That means inward supplies used by taxable person for construction of property other than plant and machinery, तो उस पर जो आरटीसी नहीं मिलेगा। Let's understand this through an example. Mr. A purchased cement for his own building. In this case, we can't avail ITC of
cement purchased even though the building used for business purpose। मान लीजिए आपको कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है जो कि आप बिजनेस के लिए यूज़ करोगे, यानी कि या तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की आप बिल्डिंग में ऑफिस लगा रहे हो या फिर बिल्डिंग को बेचने का आपका खुद का बिजनेस है। दोनों केस में मान लीजिए अगर आप सीमेंट परचेज किया और अपने बिल्डिंग लगा दिया और अपनी बिल्डिंग बेच दी, तो उस केस में जो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला है कि आईटीसी तब मिलेगा जब नेचर सेम हो। दैट मीन्स आपने सीमेंट खरीदा, सीमेंट को ही बेच दिया, तब आपको आईटीसी मिलेगा। लेकिन अगर आपने नेचर या फॉर्म जो है चेंज कर दिया, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, टू कंपोजिशन स्कीम। ये तो आपने पढ़ा होगा कंपोजिशन लेवी चैप्टर में कि आईटीसी नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट, टू एनआरआई गुड्स इंपोर्टेड बाय। तो एनआरआई को जो है गुड्स पे जो जिसने गुड्स इंपोर्ट की हैं उस पे जो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। देन सप्लाइज यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए ही आपको आईटीसी मिलेगा। एंड द लास्ट पॉइंट, गुड्स स्टॉलन और destroyed or written off or gifted or free sample. In these cases also ITC will not be allowed. So this is all concept about section 17, apportionment of credit as well as block credits. Now let's discuss about next section, section 18. सेक्शन 18 क्या कहते हैं? आईटीसी एलिजिबिलिटी ऑन स्पेसिफिक इवेंट्स। दैट मीन्स आईटीसी जो है अवेलेबल होगा कुछ स्पेसिफिक इवेंट में। स्पेसिफिक इवेंट्स का क्या हो सकते हैं? लाइक कोई मान लीजिए इस फाइनेंशियल ईयर में 18-19 में वो यहाँ तक जो है रजिस्ट्रेशन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं था, बट फ्रॉम दिस डेट ही इज एलिजिबल फॉर गेटिंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। दैट मीन्स लाइक सपोज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एज पर द टर्नओवर। तो इस डेट से इस डेट तक उसको जो आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, बट कैसे मिलेगा वो आप यहाँ पढ़ेंगे। यानी कि पूरे साल का नहीं मिलेगा, ओनली फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, या फिर दूसरा केस पूछते हैं, दिस इज फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वन इज अगेन ये फाइनेंशियल ईयर है 18-19, मिडल ऑफ दिस ईयर
a person is getting voluntary registration, then again he is eligible to get ITC, voluntary registration. दैट मीन्स यहाँ पर हम ये पढ़ना चाहेंगे कि उसको ITC मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कौन से गुड्स को मिलेगा, क्या उसने जो गुड्स यहाँ पर जो परचेज की सिर्फ उनको मिलेगा या प्रीवियस वाले में मिलेगा, और गुड्स में मिलेगा तो कौन से स्टॉक पे मिलेगा, क्या सारे गुड्स पे मिलेगा. So there are some specific events where we need to study who are the eligible person to get ITC. So let's discuss briefly. First point, compulsory registration. कब मिलेगा उसको बेनिफिट, या कंपल्सरी कब रजिस्ट्रेशन ले सकता है, ये आपने पढ़ा हुआ है. पर्सन applied for registration within 30 days of becoming liable to register and has got registration. Then entitlement, which means कौन कौन से गुड्स पे जो उसको ITC मिलेगा. ITC of inputs, semi-finished, and finished goods. That means कैपिटल गुड्स को छोड़कर बाकी सब गुड्स पे उसको जो ITC मिलेगा. बट कौन सी डेट से जो उसको स्टॉक पे मिलेगा, immediately preceding day of becoming liable to take registration. Now let's understand. मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने इस फाइनेंशियल ईयर में उसको जो है यहाँ पर वो लायबल बन गया. सो मान लीजिए डेट है सपोज 1 अक्टूबर, ठीक है. सो फ्रॉम दिस डेट, दैट मीन्स विद इन 30 डेज, दैट मीन्स टिल 30 अक्टूबर वी नीड टू गेट रजिस्ट्रेशन. मान लीजिए उसकी जो इस डेट से जो उसका जो है टर्नओवर एक्सीड कर गया, ठीक है. सो यहाँ से यहाँ तक तो उसको जो वो GST में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. बट गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको जो है कौन कौन से गुड्स में मिलेगा, इनपुट गुड में मिलेगा, सेमी फिनिश मिल सकता है, एंड फिनिश, इन सब गुड्स पे जो आपको जो है ITC मिल जाएगा. बट कब से मिलेगा, दैट मीन्स इस प्रीवियस डे के, दैट मीन्स 30 सितंबर को जितने भी ये गुड्स होंगे, 30 सितंबर में आपके पास जो भी इनपुट गुड्स होंगे, सेमी फिनिश गुड्स होंगे या फिनिश गुड्स हो गए, उन सब पे जो है आपको जो है ITC मिलेगा. दैट मीन्स 29 सितंबर तक के आपको ये सब गुड्स नहीं मिलेंगे. फ्रॉम 30 सितंबर ऑनवर्ड्स you will get ITC of these goods. Which are those goods? Input goods, semi finished goods and finished goods. Okay, next point is before this let's discuss side by side section 18.2. This section actually applies in all cases.
This section is of CGST Act. That means the person can only avail the benefit of ITC before the expiry of 1 year. That means अगर आप कोई भी आप ITC ले रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो उसके एक्सपायरी से 1 साल पहले तक आप ले सकते हो। सपोज आप 1 मार्च की डिटेल्स आप जो है पूरे मार्च की जो है आप ITC मार्च कब दिखाते हैं फाइलिंग स्कीम, अप्रैल में, ठीक है। सो दैट मीन्स ये मान लीजिए 1 मार्च 2018 है, तो आप इसकी फाइलिंग जो है मार्च 2019 को तक ही दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने ITC लेना भूल गया, किसी कारण से आप ITC नहीं ले पाए, तो फिर आप इसके बाद आप ITC नहीं ले सकते, वो लैप्स हो जाएगा। उससे पहले आप जो ITC कभी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था हमने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट वन इज वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। When from the date a person got registration, उस डेट से उसको जो ITC मिल जाएगा। देन एंटाइटलमेंट, कौन कौन से गुड्स पे उसको ITC मिलेगा। अगेन इनपुट गुड्स, सेमी फिनिश्ड, एंड फिनिश्ड गुड्स। दैट मीन्स अगेन कैपिटल गुड्स को छोड़ कर बाकी सब पे जो इसको ITC मिल जाएगा। स्टॉप डेट, कौन से डेट, सेम वही जो हमने ऊपर पढ़ा था, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑफ डेट of grant of registration। okay, third point, composite to regular। मीन्स मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, उसने इस फाइनेंशियल ईयर में था, वो यहाँ तक तो नॉर्मल सप्लायर था, बट फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड्स he has applied for composition scheme, and as you know very well, once he got composition scheme, the person is not allowed to get benefit of ITC। तो उस केस में जो ITC कैसे मिलेगा, कब से मिलेगा, सॉरी कब तक मिलेगा उसको। when registered person ceases to pay tax under section 10।
यानी कि जैसे ही पर्सन जो है नॉर्मल सप्लाई से कंपनी स्कीम जो है ऑप्ट कर लेता है, उस डेट से जो है वो उस डेट तक ही जो वो आईटीसी ले सकता है, उसके बाद से वो नहीं ले सकता। अगर मान लीजिए उसने पूरा ले लिया हो तो क्या होगा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को वो रिफंड करना होगा। नेक्स्ट, कौन कौन से गुड्स पे जो वो आईटीसी ले सकता है? इनपुट, सेमी फिनिश्ड, finished goods, as well as of capital goods। यानी कि इस केस में जितने भी गुड्स होते हैं सब पे जिसको आईटीसी मिल जाएगा। कौन सी डेट तक मिलेगा? अगेन इमीडिएटली, preceding day of date from which person comes under normal scheme। सॉरी, एक्चुअली मैंने ये एग्जांपल गलत दिया, सॉरी। मीन्स पर्सन जो है यहाँ पर तक था वो कंपोजिशन लेवल में, उसके बाद वो आ गया नॉर्मल, उसके बाद वो नॉर्मल सप्लाई हो गया। ठीक है, सो दैट मीन्स कब से मिलेगा? जैसे वो इस डेट से जो है वो एलिजिबल पर्सन बनेगा। दैट मीन पर्सन सीजेस टू पे सेक्शन अंडर, यानी कि जब से वो कंबशन सीज हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, जैसे नॉर्मल सप्लायर में आया तब से वो आईटीसी ले सकता है। कौन कौन से गुड्स पे सब पे ले सकता है? इनपुट, सेमी फिनिश, फिनिश्ड एंड कैपिटल गुड्स। यानी कंपनी लेवल में जो भी उसका गुड्स होंगे सब पे जो वो उसके बाद नॉन सप्लाई आएगा सब पे ले सकता है। देन कब से? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे, यानी कि इस डेट से पहले, इस एक दिन पहले तक उसके पास जितने भी स्टॉक थे सब पे जो उसको जो आईटीसी मिलेगा। देन फोर्थ, exempt to taxable। अगेन पहले वो एग्जाम्पशन सप्लाई में था, बाद में क्या बन गया वो? टैक्सेबल। सो कब से मिलेगा? एन exempt supplier become taxable supplier। तब से मिल जाएगा उसको आईटीसी। देन कौन कौन से स्टॉक पे इसको मिलेगा? आईटीसी ऑन इनपुट, सेमी फिनिश्ड, finished goods, related to such exempt supply and on capital goods exclusively used for exempt supply। मतलब क्या है ध्यान से, अच्छा पहले एक उसको पूरा कर लेते हैं। स्टॉक डेट,
again immediately preceding day from which comes under taxable supply. देखिए इस फाइनेंशियल ईयर में पर्सन पहले था एग्जाम सप्लाई करता था, यहाँ तक वो जो है वो एग्जाम सप्लाई करता था। नाउ फ्रॉम दिस डेट ही है सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है वो। तो फिर इस डेट तक उसके पास इनपुट, सेमी फिनिश, फिनिश्ड और कैपिटल गुड्स भी हों इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑफ विच बिकम टैक्सेबल सप्लाई, तब तक उसको मिलेगा। लेकिन जैसे वो ये डे क्रॉस कर जाएगा तब उसको कैपिटल गुड्स में नहीं मिलेगा, लेकिन इनपुट, सेमी फिनिश एंड फिनिश गुड्स पे जिसको आईटीसी मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स पे सिर्फ और सिर्फ इस डेट तक मिलेगा, बाकी इस डेट पे उसको कैपिटल गुड्स पे नहीं मिलेगा। इस पे आपको ये पॉइंट याद रखना है, कैपिटल गुड्स सर। एक्सक्लूसिवली यूज फॉर एक्सम सप्लाई, जैसे वो टैक्सेस सप्लाई में आएगा तब उसको इस पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, तो ये था आपका सेक्शन 18। लेकिन कुछ केस में जो आपका जो आईटीसी वो रिवर्स भी हो जाता है। आईटीसी रिवर्सल किस किस केस में हो सकता है? मान लीजिए कोई पर्सन है, अभी हमने पढ़ा था कि कोई पर्सन जो कंपोजिशन लेवल से नॉर्मल चला गया, लेकिन अगर कोई नॉर्मल से कंपोजिशन में चला गया तो और फिर उसने पूरे साल का अगर आईटीसी लिया तो वो रिवर्स हो जाएगा। सेम वो कोई पर्सन जो है टैक्सेबल था, बाद में वो इनकम सप्लाई कर रहे हैं, तो फिर उस केस में जो है आईटीसी रिवर्स हो जाएगा, या फिर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए तो भी उसको जो आईटीसी रिवर्स किया जाएगा। दैट मीन्स इन दीज 3 केसेस आईटीसी विल बी रिवर्स। So this is all about section 17 and section 18. So what we have discussed was so far, as I told you that this is a very important video. Like first we have discussed meaning of input services. That means apportionment, when the apportionment of credit includes capital goods also. तो उस केस में जो हम क्या करेंगे, कॉमन क्रेडिट्स निकालेंगे। कॉमन क्रेडिट्स से निकालेंगे दैट मीन्स इंक्लूड और इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। तो कैसे निकालेंगे, माइनस को पहले नॉन बिजनेस आइटम, एक्शन सप्लाई, ब्लॉक क्रेडिट्स। क्या बचेगा, रिमेनिंग क्रेडिट्स, उसमें जो है टैक्सेबल गुड्स इस पर जो आईटीसी मिलेगा। तो बाकी क्या रहेगा, कॉमन क्रेडिट्स, उसमें जो है एक्शन सप्लाई की जो प्रोपोर्शनेट है वो निकाल दो, या अगर बिजनेस का प्रोपोर्शनेट है तो उसका 5% जो है वो बाहर निकाल दो। तो बाकी क्या जाएगा, रिमेनिंग क्रेडिट्स, उस पर जो आईटीसी मिलेगा। दैट मीन्स टोटल अवेलेबल कितना मिलेगा, आईटीसी ऑन जीरो रेटेड सप्लाई प्लस जो रिमेनिंग क्रेडिट उस पर मिलेगा। Then we have discussed section 17.5, that is block credits. That means even though the goods and services are used for further business, then ITC will not be allowed. Such as motor vehicle conveyance पे नहीं मिलेगा, but in these cases except in cases मिलेगा. Then food beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services पे नहीं मिलेगा except on these cases. That means when there is a inward supply and outward supply, the nature is same. Then membership of club, health and sports service, that means if any company providing these services to its employees, then ITC will not be available. Then render care, life insurance and health insurance,
पे नहीं मिलेगा, बट अगर गवर्नमेंट ने इसको ऑब्लिगेटरी बना दिया तो फिर मिलेगा। देन ट्रैवल बेनिफिट टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन, इस पर जो आईटीसी नहीं मिलेगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मिलेगा, बट कब मिलेगा, अगर इनपुट और इनवर्ट सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई जो है सेम नेचर के हो, या फिर इम्यूनल प्रॉपर्टी कौन सी हो, प्लांट एंड मशीनरी हो। देन ये इस एग्जांपल में अगर के थ्रू अगर कोई इन्वर्ट सप्लाई कर रहा है इन वर्क कॉन्ट्रैक्ट में तो फिर इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। कंपनी को नहीं मिलता, कोई एनआरआई गुड्स इंपोर्ट कर रहा है तो नहीं मिलेगा, पर्सन कंजम्पशन कर रहा है तो नहीं मिलेगा, गुड्स चोरी हो गए, ख़राब हो गए, रिटर्न ऑफ कर दिया, गिफ्ट कर दिया, फ्री सैंपल हुआ तो फिर इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। देन सेक्शन 18 हुआ था एलिजिबल पर्सन ऑन स्पेसिफिक इवेंट्स, दैट मीन्स फर्स्ट वन इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हुआ, कौन सी डेट से हुआ, उस डेट से जो उसको जो आईटीसी मिलना शुरू हो जाएगा। कौन से गुड्स पे मिलेगा उसको, इनपुट गुड्स में मिलेगा, सेमी फिनिश गुड्स में मिलेगा, फिनिश गुड्स में मिलेगा। कौन सी डेट से उसको जो मिलेगा, इमीडिएट डे ऑफ बिकमिंग लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। 18(2) में क्या बोला है, दैट मीन्स अ पर्सन कैन अवेल बेनिफिट आईटीसी फॉर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, 1 साल से पहले वो जो वो आईटीसी ले सकता है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अगेन जिस डेट से वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उस डेट से मिलेगा, इनपुट का मिलेगा, सेमी फिनिश गुड्स का मिलेगा एंड फिनिश गुड्स का मिलेगा। कंपोजिट टू रेगुलर में आया तो फिर जिस डेट से वो रेगुलर में आया उस डेट से जो उसको आईटीसी मिलेगा, और उस पर जिसको सारे गुड्स मिलेगा, चाहे वो इनपुट हो, सेमी फिनिश्ड हो, फिनिश्ड हो या फिर कैपिटल गुड्स में सारे फिनिश्ड गुड्स मिले। देन अगेन एग्जाम टू टैक्सेबल पे आया तो भी उसको सब गुड्स में मिलेगा, एंड इन दिस केसेस आईटी विल बी रिवर्स्ड। कौन से केस होंगे, नॉर्मल टू कंपोजिशन में आया, टैक्सेबल टू एग्जाम्प्टर में आया एंड रेजिस्ट्रेशन पेंसिल आया। So this is all about input tax credit. Thank you.